social media for branding, we should know this secret formula. The secret formula is who you are targeting. There should be a target audience which you are targeting. Then the question of who should be clear. Second is where is that platform? The platform is that thing in which your target audience are available and they are active. Most of your audience are active in that location. That will be your platform, and that question will be answered by where you will find this target audience. And the third question is what you are throwing the bait to catch that audience. The next question is the bait you have to throw to the audience to grab their attention. And the last thing is where. When the audience are started, they have started listening to you, then where are you taking them? How you are monetizing that audience base to your further in your CA practice or your other endeavors. So we will see this thing, the secret formula, how we can handle this, all the 4 questions. So as we know, like social media for branding is very powerful. Like whether it is content marketing, in these days social selling have been done. Social media gives you the perfect opportunity to reach your target audience and build your brand. Like these days, when you scroll like Instagram or Facebook, you after every reel, after every post, you see a message popping up of some other chartered accountants or other influencers. They are showing you their agenda and motivating you to learn about them, that who are they. So in that way, you are being monitored by the social medias, and with the help of that monitoring, they are making a tons of money. Right now, Facebook, the Meta company, is judging us with a 52,000 data points. These are the huge database these social media platforms are creating. What we like, what is the time of the day when we are most active, most energized. All these informations are available with this social media platform. So we can use this information for our betterment with the help of this social media tricks, which we are going to see today. So what are the benefits of social media branding? Let me tell you, like how you can be like having a great brand building with the help of this social media. So first is building brand awareness. So right now, when we start practicing, when we become CA and we start practicing, like very little people around our family, around our known persons know us. Like no other new audience, our target audience doesn't know us. Like our target audiences want to give the work to us. They don't know us. So our duty is to educate them. So the education is like the thing which is available free of cost that you can provide to anyone and take from anyone. So this is the need of the hour, that we should start educating our target audience about our knowledge so that they can come to know about our knowledge. So first is several individual users have never listened to them. So everyone should know like who the Rajat Agarwal is, who the XYZ is. So when you start speaking, when you start delivering something and you start educating the people, they will recognize you because you are helping them. You are not in the motive of grabbing that, soliciting that client. You are in the motive of educating the client. When you are educating, so you are helping. And when you are helping, they will recognize you and they will think you as an influencer. In that way, they will promote. You don't have to promote yourself. Your audience will promote you. And in that way, you can build a great audience base. In that way, you can promote and sell anything to that audience base. So social media is a form to fill the breaks and get the presence to the new audience, because that is the new audience. When you help your one audience and they are promoting you, then you are getting a new audience base. So this is the building brand awareness campaign which you can run. Then next is the building brand equity. Like when we see in social media, when we search something like someone like GST expert, then GST expert, we can see some people अराउंड हियर लाइक इंडिया के सबसे बड़े जीएसटी एक्सपर्ट केजी क्लासेस पर ये इस तरीके से मतलब प्रमोशन जो काइंड ऑफ है. बट इसमें क्या हो रहा है कि वो अपने एक एजुकेशनल कंटेंट डेवलप कर रहे हैं. जैसे केजी क्लासेस है तो वो एक दूसरे नाम से, यहाँ पे फर्म का नाम यूज नहीं हो रहा है ना उनका नाम यूज हो रहा है, तो वो फर्म के नाम से यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं. कपिल सर है, उसके जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बिमल सर है जो कि एजुकेशनल जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. उसी तरीके से हम देखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस है. जैसे अगर कोई हमारा टारगेट ऑडियंस है तो वो क्या करेगा कि वो यूट्यूब में कोई अगर उसको कुछ भी चीज सीखना है तो उसको सर्च करेगा और कोई भी सोशल मीडिया पे भी वो सर्च करेगा. और जैसे ही वो सर्च करेगा और जो टॉप में जो भी प्रेजेंट होगा सबसे पहला अटेंशन उन्हीं के पास ही जाए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम आज की डेट में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस लोकेशन तक पहुंचे कि हम कोई भी चीज में जब एक्सपर्ट हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो कोई भी सोशल मीडिया पे हो वो टॉप पे रहना चाहिए. तो उस तरीके से हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके थ्रू हम सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो हमारा इंक्रीज कर सकते हैं. हम इसमें और भी ऑप्शंस देखते हैं किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे एक्टिव और रह सकते हैं. जैसे कि अब देखिए, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं और कुछ टाइम बाद आप सोचेंगे कि फिर वो हमारे तक पहुंचेंगे कैसे, कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, तो होता यह है कि कुछ टाइम बाद हमारी जो ऑडियंस, हमारी जो नाम है वो भी एक ब्रांड बन जाता है. जैसे कि शिफाली गेरदेवाल एक जीएसटी एक्सपर्ट है ये भी, तो वो क्या करती है कि कंसल्टीज नाम से वीडियोस बनाती थी.
तो वो धीरे धीरे वीडियोस बनाते बनाते वो एक नाम इतना बढ़ गया कि अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे शेफाली गेंदेवाल तो रिलेटेड पूरा पेज भर के उन्हीं के बारे में ही आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी फॉर्म का नाम यूज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली आप अपने नाम को प्रमोट कर रहे हैं, और नाम प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हैं। कोई यहाँ पे एथिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना नाम प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ऐड नहीं कर रहे हैं, ना कोई सॉलिसिट कर रहे हैं, आप एजुकेशनल फ्री एजुकेशनल कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके ऑडियंस को पसंद आता है, उनकी हेल्प करने के लिए। ना ही आप उनसे कोई, आप जब वीडियोस भी बना रहे हैं ग्रैब करने की कोशिश मत करिए वीडियोस में कि अगर आपको इसमें कोई तकलीफ जा रही है तो आप सीधा डायरेक्टली हमारी ये सर्विस ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोलिए। आप उनकी हेल्प करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करिए, वो कभी ना कभी वो आपको रिटर्न आएगा और उस तरीके से आपको मदद मिलेगी। तो ये तरीका होता है जिसमें कि हम हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो इक्विटी का, जैसे मैंने दिखाया कि व्यू कैसे बनाया जाता है। तो व्यू, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये जो व्यू बन रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये एक प्रकार से इक्विटी है। इक्विटी कैसे हुई? क्योंकि ये चीज यहाँ पे जो टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए लोग लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज खर्च करते हैं ताकि वो इस पोजीशन तक पहुंच पाए। देखिए जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, तो इनकम टैक्स रिटर्न पे किस तरीके से हम यहाँ पे टॉप पोजीशन पे यहाँ पे ऐड चल रही है, भले वो पढ़ाने के लिए है, पर यहाँ पे इस तरीके से जो है कि एक मार्केटिंग कैंपेन होता है जो कि रन किया जाता है। पर यहाँ पे ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, पर उससे रिलेटेड जो नीचे जो वीडियो चल रहे हैं जहाँ पे वो एजुकेट कर रहे हैं कि ITR 1 फाइल कैसे करना है, ITR 1 को 10 मिनट में कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए फाइल ITR इन 10 मिनट्स। तो इस तरीके के जो कुछ एजुकेशनल कंटेंट्स है, तो लोग तो अगर जब इनकम टैक्स रिटर्न सर्च करेंगे तो उनको तो ये लोग ही दिख रहे हैं ना। अब ये भले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, पर ये टारगेट ऑडियंस आपका लेकर जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट डालें ताकि एजुकेशनल कंटेंट से हम लोगों तक पहुंचे, ये जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचे, ताकि हम यहाँ पे ग्रो कर सके। तो ये कुछ तरीका है कि जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ द माइंड, ये कि कैसे हम, अब होता ही है डेली बेसिस में जब आप दिन भर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कई बार ये होता है कि कोई सेम क्वेश्चन हर कोई क्लाइंट हमसे पूछता रहता है कि सर ये बताइए ये कैसे होता है, सर ये बताइए ये कैसे होता है। ये चीज आपको पता है कि ये जो कंसल्टेंसी है ये फ्री है एक प्रकार की, क्योंकि एकदम सिली सी चीज है जो कि लोगों को हम बता सकते हैं बिना कोई चार्ज करे। तो अगर वो ऐसी चीज है तो उसके लिए वो तुमको कॉल कर रहे हैं, उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हम इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ फ्लायर्स, कुछ एजुकेशनल कंटेंट्स बना सकते हैं, जिससे कि जब भी अगर कोई आपसे कोई वो डाउट पूछे तो वो आप उनको वो फॉरवर्ड कर सके कि ये मैंने इसमें इस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से आपका एक टाइम बचेगा, और जितना ज्यादा टाइम बचेगा आप उसमें और प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। और होता यह है कि वो चीज, क्या पता कोई ऐसा कुछ डाउट आ रहा है आपके टारगेट ऑडियंस को जो कि रात के आ रहा है, जब आप अवेलेबल नहीं है, जब आप कॉल नहीं अटेंड कर सकते, तो ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया आपकी मदद करेगा, जब आप वो रात की भी वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको वो एजुकेशनल कंटेंट दे पाएंगे। तो ये 24/7 आपका चलते रहेगा, और ये ऐसा करने से होगा फायदा ये कि आपका नाम उनके दिमाग में हमेशा टॉप पे रहेगा कि अगर मेरे को कोई डाउट है तो मेरे को रजतक वाले मदद करी थी, इस तरीके से उनके वीडियो मैंने देखा था, उससे मेरे को जानकारी मिली थी। तो कभी भी वो आपको भले भी कहीं कोई भी मीडियम से फिर वो खोज के आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये तरीका होता है कि हम सोशल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को और बढ़ा सकते हैं। और लास्टली ये सोशल मीडिया पे आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि खाली आप एजुकेशनल कंटेंट दूसरे को दे रहे हैं ऐसा नहीं है। अब वो क्या होता है कि लोग आपसे कमेंट्स में उसके रिलेटेड डाउट्स भी पूछेंगे। तो डाउट्स अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपके कमेंट्स में आपको दिख रहा है कि डेली बेसिस में हाँ मेरे से ये 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंटली आस्क हो रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड कोई एक अलग एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, या तो फिर उससे उस क्वेश्चंस का क्वेरी का आंसर आप वहां पे दे सकते हैं। अगर इजी सी क्वेरी है जो कि फ्रीली आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वहां पे वो आंसर दे सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी जो क्वेरी है वो आपकी डिटेल्ड है और आप इसमें कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो इसीलिए आप मेरे को मेल करिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट। तो आप उस तरीके से वो जो उनका जो डाउट है वो आप सॉल्व करने के लिए अपने दूसरे मीडियम में उनको लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो सामने वालों के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे आप पुश नहीं कर रहे हैं, ये पुल टेक्निक से आपके पास चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से आप इसमें प्रमोट कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि हु डू यू वांट टू सर्व, मतलब हमारा टारगेट ऑडियंस इसमें रहेगा कौन, क्योंकि अब इतना पूरे देश की जनता ही हमारी टारगेट ऑडियंस हो गई कि हर कोई सीए की सर्विसेज कौन कौन यूज करेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा और इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसको सर्व करना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया में कि आप अपनी एक नीश एरिया आइडेंटिफाई, नीश एरिया जिसपे कि आप एक्सपर्ट है, जिसमें कि आपको एकदम अच्छे से वो सारी चीजें एक्सपर्टीज आती है, और वो आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बनना पड़ेगा करिस्मेटिक लीडर और एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दे रहा था, तो उसमें यूजुअली हो क्या रहा था, जो भी मैं नाम लेता था उसमें हमें पता होता था कि अच्छा वो इस चीज पे एक्सपर्ट है, वो पर्टिकुलर एक नीश एरिया पे एक्सपर्ट है। तो वैसी एक्सपर्टीज जो नॉलेज है वो हमें लानी पड़ेगी। जैसे कि हमारे सीए फैटर्निटी में और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे काफी अच्छा प्रेजेंस दे रखे हैं, जैसे कि रचना रनाडे। अब उनका स्टॉक मार्केट एक
मोनोपोली टाइप का कंटेंट है कि वो उस तरीके से वो अपने मार्केट को हैंडल कर रही है कि जिसमें वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो वो एक तरीका हो गया। वैसे आप अपना एक नीश एरिया चूज कर सकते हैं, वो कैसे चूज करना है वो भी हम आज देखेंगे कि हम वो एरिया को डिसाइड कैसे। तो ये एरिया को डिसाइड करने का तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है और जिसपे आप एक्सपर्ट है, सबसे पहले आप चालू उसी फील्ड से कर सकते हैं। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किस चीज पे एक्सपर्ट है। और अगर आप अभी सोच रहे कि मैं अभी कोई पर्टिकुलर फील्ड पे एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे को सब थोड़ा थोड़ा आता है, तो अब नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है कि हमें उस फील्ड पे एक्सपर्ट बनना है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फील्ड हम चूज करते हैं, जैसे कि मान लो अगर जीएसटी चूज करें, तो जीएसटी से रिलेटेड हर चीज हमें आनी चाहिए, हर एक एक्ट पढ़ना है, हर एक बुक जो रिलीज हुई है वो पढ़ने, एजुकेशनल कंटेंट जो है मार्केट में अवेलेबल वो देखने, यूट्यूब में जितने भी वीडियोस है जीएसटी से रिलेटेड वो देखने हैं। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट के क्राइटेरिया में आना चालू हो जाएंगे। तो उस तरीके से ये एक आपको एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। और जब आप ये एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपका टारगेट ऑडियंस वही होगा जिस तरीके से आप जब पहले थे, एक्सपर्ट बनने के पहले जब थे आप, तो आप क्या क्या चीजें सर्च करते थे, तो वही सामने वाला जो ऑडियंस है वो भी वही सर्च करेगा, तो वो आपके लिए टारगेट ऑडियंस बन जाए। तो ये जो एक प्रोसेस है कि पहले आपको खुद को एक एक्सपर्ट बनना है एक पर्टिकुलर फील्ड पे, और उसके बाद आप उन्हीं जैसे लोगों को मदद कर सकते हैं वैसा ही एक्सपर्ट बनने। तो ये एक प्रोसेस जर्नी होती है जिसमें कि सोशल मीडिया में यूजुअली यूज की जाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, व्हाट इज योर वन मार्केट। आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट से रिलेटेड मेरे को अपना नीश ऑडियंस चूज करना है। तो 3 ऑडियंस बेस होता है जो कि सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं सुनना। पहला होता है हेल्थ, दूसरा वेल्थ और तीसरा रिलेशनशिप। जैसे अगर कोई हेल्थ की एडवाइस दे रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा चलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड लोग सुनना चाहते हैं। वेल्थ है, अगर वेल्थ कोई किसी के पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है तो वैसी जो टॉपिक है वो ज्यादा चलती है, लोग सुनना चाहते हैं। फिर रिलेशनशिप एडवाइस कोई दे रहा है, अगर कोई कम एज है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड की बातें कर रही है, कैसे रिलेशनशिप तो उसकी बातें। फिर थोड़ा आगे का एज है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी टॉपिक्स रहती है जिससे कि लोग चाहते हैं एडवाइस। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि लोग एडवाइस चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो हमें इसमें चूज करना है कि हम कौन से टॉपिक में अपना नाम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज वेल्थ, क्योंकि वेल्थ ऐसी चीज है जो कि हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, या हम सामने वाला भी कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाए। तो ये कंप्लीट एक मार्केट आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस फील्ड में काम करना है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज योर सब मार्केट। अब सब मार्केट क्या हुआ कि आपको उससे रिलेटेड, अब वेल्थ तो ठीक है, अब वेल्थ में क्या, अब आपको ये डिसाइड करना है। तो वेल्थ से रिलेटेड जैसे कि अगर आप चूज कर रहे हैं कि सीए प्रैक्टिस कहीं आपका फोकस है, आप सीए प्रैक्टिस में है और आप इससे रिलेटेड ही कुछ टॉपिक चूज करना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सब मार्केट। इस तरीके से आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं, जैसे रचना रानी मैडम ने स्टॉक मार्केट चूज किया तो वो उनका एक सब मार्केट है। तो ये होता है इस तरीके से सब मार्केट आप चूज करें। फिर आता है नेक्स्ट, व्हाट इज योर नीश। ये है सबसे पावरफुल थिंग जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रहता है, वो की नीश एरिया। अब आपके हॉट मार्केट के बाद आपको एक नीश एरिया चूज करना है। तो नीश एरिया कैसा हो सकता है कि जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ एक नया कुछ लेके आ रहे हैं, तो जिसमें कि आप उनकी जो इकोसिस्टम है उससे कुछ हटकर कर रहे हैं। जैसे जीएसटी के वीडियोस तो काफी लोग बना रहे हैं, पर आप जीएसटी में क्या हटकर कुछ नया लेकर आ सकते हैं, तो वो होता है एक नीश एरिया जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप वो नीश एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी मोस्टली 50 to 60% जो जर्नी है सोशल मीडिया की, वो पूरी आपकी इजी हो जाएगी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा ये एरिया ये है, मेरे को इसी पे वर्क करना है और इससे रिलेटेड हमारे पोस्ट रहेंगे, फ्लायर्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, एजुकेशनल कंटेंट्स रहेंगे। और आगे चल के कोर्सेस हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है जो कि आप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है वो आपको एक पाथ देगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़े। तो अब अगर डिसाइड कर लिया है कि मेरा नीश एरिया ये है, जैसे कि मैंने अपना नीश एरिया चूज किया डीसा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट से रिलेटेड। तो अब होता यह है कि इसके लिए हमें कहाँ मिलेंगे वो ऑडियंस, वो हमें सर्च करने के लिए हम देख सकते हैं कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी कम्युनिटीज है। तो ऑनलाइन फोरम्स कौन से, मैसेज बोर्ड्स कौन से, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से एक्टिव है जो मेरे टॉपिक पे चल रहे हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होते हैं। तो लिंक्डइन ग्रुप्स में लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल्स ज्वाइन रहते हैं उन ग्रुप्स पे। तो आप वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उन लोग क्या बातें कर रहे हैं उनसे रिलेटेड वो बातें को मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर कुछ जवाब दे सकते हैं, जो किसी की क्वेरी है तो वहां पे आप जाके जवाब दे सकते हैं। अब अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ फेसबुक ग्रुप्स मिले, कोई यूट्यूब चैनल्स मिले, तो उन यूट्यूब चैनल्स में जाके भी अगर किसी ने कोई क्वेरी पूछी और वो अनआंसर्ड है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि भाई आपकी ये क्वेरी है और ये इसका आंसर है, कि आप इस तरीके से अपनी दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपकी रीच बढ़ते जाएगी, तो ये कुछ तरीका होगा जिससे कि आप सोशल गैदरिंग को अपनी बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि वोकैबुलरी। अब आपने नीश एरिया तो डिसाइड कर लिया, जैसे कि मान लो आपने जीएसटी या इनकम टैक्स चूज किया, तो अब इससे रिलेटेड आपको जितनी भी चीज आती है आप उससे रिलेटेड एजुकेशनल एक छोटा छोटा रील्स बना सकते हैं। 1-1 मिनट के रील्स होते हैं आजकल जो बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर चल रहे हैं, तो आप रील्स बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल वीडियोस है 8-10 मिनट का, उसको एक्सप्लेन करते हुए चीजों को समझा सकते हैं। और कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जैसे कि अगर मैंने डीसा से रिलेटेड मैंने क्या किया है कि मैंने ई लर्निंग किस तरीके से होती है, ईटीएटी क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे की जाती है, और फिर उसके बाद जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं मेरे सब्जेक्ट्स में उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक अपना एक लिस्ट तैयार कर लिया। तो ये आप अपनी नीश एरिया पे एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि मेरा ये 2 महीने या 3 महीने का प्लान है, 3 महीने में मैं डेली इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आप इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं कि जिससे कि आप अपनी जो गैदरिंग है, पॉपुलैरिटी है, वो आप बढ़ा सकें। फिर आता है इवेंट लिस्ट, इवेंट्स और मार्केट होल्ड। अब आपकी जो टॉपिक है, अब अपने टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऑफलाइन या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, समिट्स होती है, मास्टरमाइंड क्लासेस होते हैं, आप ये फिगर आउट कर सकते हैं और आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि वहां पे एज अ स्पीकर आप विजिट करें। तो आप वहां के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करिए कि मैं इस कंटेंट पे भले ही 5 मिनट या 10 मिनट बोलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप उस प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं और वो डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस तक आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जिस तरीके से आप टारगेट ऑडियंस तक अपने पहुंचेंगे। और लास्टली है कि आप ऐसे जितने भी मार्केट की जो सेलिब्रिटीज गुरुज है, जैसे इनकम टैक्स में जो मेन हाईलाइटेड गुरुज है, आप उनको देखिए, उनसे बात करिए और उनसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करिए कि भाई अगर आप जीएसटी से, तो जैसे शिवाली मैम से बात करिए कि भाई मैं आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, या आप अगर जीएसटी से अगर कुछ दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनसे बात करिए जो भी एक्सपर्ट है कि हम इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनके भी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। तो ये एक तरीका होता है कि जिसके थ्रू हम अपनी जो गैदरिंग है, जो हमारी सोशल प्रेजेंस है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया यूट्यूब प्रेजेंस में, अगर मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एकदम नीश टॉपिक है, बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे, बट ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है अगर आप चूज करना चाहें तो। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं अपने तरीके से। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम कई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स बना रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। फिर वेबसाइट में भी प्रेजेंस है, जैसे कि ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो कुछ ब्लॉग्स में कुछ कंटेंट है यहाँ पे अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है, जैसे कि गूगल्स में जो है वहां पे भी प्रेजेंस है, तो उसमें कई सारे अलग अलग वेबसाइट्स रहती है, तो वहां पे भी अपना प्रेजेंस जो है, लिस्टिंग है, वो यहाँ पे लोग करते हैं। तो उस तरीके से ये जो प्रेजेंस है वो बनाया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई कि हमें टॉपिक चूज कर लिया, हमें क्या करना है वो पता चल गया। अब ये जो टॉपिक है, अब कई बार मन में सवाल आता है कि यार ये मैं टॉपिक तो चूज कर लिया, पर क्या ये वर्थ है भी, इसके बारे में मैं मेहनत करूं, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है। तो इसके लिए ये 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे वुड पीपल इन दिस सब मार्केट बी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी इन माई निश। तो ये आपको डिसाइड करना है, वुड पीपल इन ये प्रैक्टिस बी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू निश। मतलब अगर आप कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं तो क्या लोग उससे के लिए एक्साइटेड है, वो चीज जानना चाहते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा सबसे पहले। उस टॉपिक को आप अभी अगर आप सोच चुके हैं वो टॉपिक, तो ये क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। आर द पीपल इन दिस मार्केट इररेशनली पैशनेट। क्या वो इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप के कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं। तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा। तो जब आप ये आंसर करना चालू करेंगे तो आपका जो टॉपिक है, नीश है, वो और क्लियर होते चल जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी के लिए मैं ये 2 स्टेटमेंट यूज करता हूँ, जिसके थ्रू मेरे को एक आइडिया मिल जाता है कि ये चीज कितना चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि खुद ही मैं, ये एक लाइन है, आई एम गोइंग टू टीच डैश टू डैश। इस लाइन को कंप्लीट करना है हु और व्हाट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे क्या करना है कि आपको आई एम गोइंग टू टीच नीश एरिया, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं वो नीश एरिया यहाँ पे फिल करना है। और फिर नेक्स्ट है कि टारगेट ऑडियंस आपको फिल करना है। 2 के बाद टारगेट ऑडियंस फिल करना है। तो जैसे अगर मैंने अपना एग्जांपल लूं, तो आई एम गोइंग टू टीच डीसा टू सीए मेंबर। तो मेरा माइंड सेट क्लियर हो गया कि मेरे को यही पढ़ाना है और मेरे को इन लोगों को ही पढ़ाना है। वैसे ही अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ये एक नीश एरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे को इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाने हैं और इन लोगों के लिए ही बनाना है। तो ये एक पहला स्टेटमेंट है जो आपको क्लियर करना है। फिर सेकंड है अपॉर्चुनिटी स्विच हेडलाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें को एक्सप्लेन, मतलब अगर आप इन चीजों को हैंडल पहले से ही कर ले तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और वो काफी जल्दी आप अपना ग्रो, जो अपनी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो बढ़ा सकते हैं। तो सेकंड है अपॉर्चुनिटी स्विच हेडलाइन, हाउ टू डैश विदाउट डैश। अब यहाँ पे 2 चीज फिल करनी है आपको, रिजल्ट दे डिजायर मोस्ट और थिंग दे फियर मोस्ट। तो जैसे कि सामने वाला क्या चाहता है, सबसे पहले तो हाउ टू में वही आना चाहिए, और फिर सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा गड़बड़ किस चीज पे उसको लगती है, वो आना चाहिए नेक्स्ट चीज पे। मतलब ये वो चीज होगी जिसके लिए आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका विदाउट के बाद आएगा जो थिंग दे फियर मोस्ट। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए मैंने बनाया कि हाउ टू क्लियर डीसा इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। मतलब अब सीए में क्या है कि मेरे ऑडियंस बेस है, उनको टाइम बहुत कीमती है, उनके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम टाइम पे, मतलब उनका फियर है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में,
तो वो फियर को खत्म करना और डिजायर कि उनको एक बार में क्लियर करना, ये डिजायर। तो इस तरीके से ये चीज होती है जो अपॉर्चुनिटी स्विच है। आप अपने फील्ड पे इसको यूज करके देख सकते हैं, जो भी आप कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे आप डिलीवर करना चाहते हैं। अब ये सब चीजें तो क्या हो गई सोशल मीडिया से रिलेटेड, अब हमने सारा चीज डिसाइड कर लिया कि हमें किस टॉपिक किस मार्केट में काम करना है, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, कौन सा हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, नीश एरिया क्या होगा, वो सब हमने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद हमने उसकी पॉपुलैरिटी चेक भी कर ली है और वो चाहते हैं क्या चाहते हैं वो भी सब हमने डिसाइड कर लिया है। जब अगर हम ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसके बाद बारी आती है थोड़ा सा हमारे मार्केटिंग स्किल्स। और वो मार्केटिंग स्किल्स ऐसा है कि जिसके थ्रू हम खुद बोल के मार्केट कर सके वैसी चीज। अब वो होता है, इसको एक बुक है ब्लेयर वॉरेन की, उन्होंने बोला वन सेंटेंस परसुएशन। वन सेंटेंस परसुएशन ये बोला गया है इस बुक में, पीपल विल डू एनीथिंग फॉर दोज हु एनकरेज देयर ड्रीम। अगर आप उनकी ड्रीम को एनकरेज कर रहे हैं कि क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, अगर आप उसको एनकरेज कर रहे हैं तो वो आपको सुनेंगे। सेकेंड है जस्टिफाई देयर फेलियर, उनके फेलियर्स को आप जस्टिफाई करेंगे तो वो आपको सुनेंगे। अलाय देयर फियर्स, कंफर्म देयर सस्पिशंस एंड हेल्प देम थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज। अगर आप ऐसी चीजें डिलीवर करेंगे कंटेंट में तो सामने वाला आपको सुनना चाहेगा, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक 1-to-1 कनेक्शन आप इस पे बना पाएंगे अपने ऑडियंस बेस के साथ, क्योंकि आप उनसे रिलेटेड उनकी काम की बातें करें। तो ये एक तरीका होता है वन सेंटेंस परसुएशन का। इसको आप अपने टॉपिक अपने कंटेंट पे यूज करके देख सकते हैं कि हाउ विल यू एनकरेज कस्टमर्स ड्रीम, ये आपके जो कस्टमर्स है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आप उनके ड्रीम्स को कैसे एनकरेज करेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, उसका आप हेल्प ले सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना जो आपका नीश एरिया उस पर बनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनके कौन सी ड्रीम को एनकरेज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने किया कि क्लियर डिजाइन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये ड्रीम है मेरे कस्टमर्स का, मैं उनको एनकरेज करना चाहता हूँ। फिर व्हाट फियर्स विल यू अलाइ, मतलब उनका क्या डर है, क्या डर है जिसको आप खत्म करेंगे। तो जैसे कि मेरे ऑडियंस का डर है कि भाई उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टफ है, तो फिर मैं उसको डर को दूर करने की कोशिश करूंगा हमारी वीडियोस के थ्रू कि यार कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, हम क्लियर कर सकते हैं बहुत कम से कम समय में भी। इस तरीके से हम वहां पे कंटेंट जो है डिलीवर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है जस्टिफाई फेलियर, मतलब व्हाट कॉमन फेलियर्स विल यू जस्टिफाई। तो आपके जो ऑडियंस है उन लोग किस चीज पे उनको दिक्कत आ रही है, क्या वो चीज में फेल हो जा रही है। तो आप उनको ये मत बोलिए कि भाई अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप कर ही नहीं रहे, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपको उनका साथ देना है। तो साथ कैसे देंगे, जैसे मेरा एग्जांपल है कि एज यू आर इन प्रैक्टिस यू डोंट गेट टाइम, दैट्स व्हाई यू आर नॉट क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना है और ऑडियंस के साथ चलना है, ना कि उनको डिमोटिवेट करना है। तो इस तरीके से आप इनके जस्टिफाई कर सकते हैं उनके फेलियर्स को। फिर व्हाट सस्पिशंस विल यू कंफर्म, मतलब क्या जो सस्पिशन है उनको करना। तो टेक्निकल टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, मेरे टारगेट ऑडियंस वही बोलते हैं कि भाई बहुत टेक्निकल टर्म्स है, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं भी उनके साथ कंफर्म करता हूँ, हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जो है वो यहाँ पे समझना मुश्किल तो है। तो इस तरीके से हम उससे कनेक्ट कर पाए। फिर आता है व्हाट एनिमीज विल यू थ्रो रॉक्स एट, तो उनको जो उनके एनिमी है वही आपके भी एनिमी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। तो ये एक तरीका होता है जो कि वन सेंटेंस परसुएशन, जिससे कि आप अपने ऑडियंस बेस को परसुएट कर सकते हैं, अपने तरफ आप लेकर खींच के आ सकते हैं और एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने ऑडियंस बेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जब आप पूरा कंप्लीट जो पैकेज जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जो जर्नी जो अभी मैंने अभी तक आपको बताया वो जीना चालू करेंगे, तो आप एक फ्लैग बियरर बन जाएंगे। फ्लैग बियरर द टाइटल ऑफ लिबर्टी आप लेके चलने वाले हैं। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो आपने अपने अंदर कैरिस्मेटिक लीडर को आइडेंटिफाई किया कि आप किस चीज पे एक्सपर्ट है, आपने वो साबित किया। उसके बाद आपने मूवमेंट चालू करी कि मैं लोगों को भी एजुकेट करूंगा इस फील्ड पे और लोगों को एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो ये आपका मोटिव रहेगा। तो ये आपने एक मूवमेंट स्टार्ट करी है। और उसके बाद अस वर्सेस देम, मतलब आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं, आप उनकी कोई भी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे है। व्हाई यू आर डिफरेंट वो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप कैसे आप अलग है, आप क्यों एक्सपर्ट है। हु आर यू कलेक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट, आप लोग जितने भी ऑडियंस है हम उससे किस तरीके से लड़ रहे हैं वो आप यहाँ पे साबित कर रहे हैं। और आप इस तरीके से साबित कर सकते हो कि हु यू आर। तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंसर है उसका यहाँ पे जन्म होता है कि किस तरीके से द बर्थ ऑफ द इन्फ्लुएंसर, कि हाउ दे कैन बिकम द एक्सपर्ट इन द फील्ड। सो इन दैट वे यू कैन बिकम द इन्फ्लुएंसर। तो अब इसके लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रहना पड़ेगा। टेक्निकल ये है कि कुछ आपको गैजेट्स परचेस करने पड़ेंगे, जो कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट किया है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स है वो मैं यूज करता हूँ। अब अपना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैमरा है, एक ये जो वेबकैम है लोग इसके थ्रू भी चालू कर सकते हैं। वेबकैम लॉजिटेक ब्रायो का आता है, बहुत ही अच्छा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेंस है, माइक है, तो जिस तरीके से ये माइक रखा हुआ है जिसके थ्रू आप क्लियरली आवाज आप सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये भी एक ऐसी चीज है जो अभी वर्चुअल वर्ल्ड का नीड बन चुका है
ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को वर्चुअल वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा आज की डेट में। तो वर्चुअल वर्ल्ड में आना है तो वर्चुअल वर्ल्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपको ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनिए। तो अगर आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आप काफी अच्छा प्रेजेंटेबल बन पाएंगे अपने ऑडियंस बेस। और लाइट्स की भी कुछ इंफॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से लाइट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो, कैमटेशिया, फिर एडिटिंग के लिए कैनवा, जैसे कई सारी चीजें होती है। फ्लायर्स हमें बनाना है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करना है, तो कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। वैसे ओपन बोर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं अगर कुछ आपको लिखना है तो उस तरीके से। और कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आप प्रेजेंट पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या आप हम आगे चल के परचेज करके यूज करके अपने ऑडियंस को और बढ़ा सके। और इसके साथ ये मेरी पूरी कंप्लीट जर्नी थी कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको आंसर कर सकूं। Yes, sir. We can see some queries about how to get words and hashtags and audience keywords. ओके, कई सारी जो चीजें हैं वो आपको गूगल ही प्रोवाइड कर देता है। किस तरीके से प्रोवाइड करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको रिकमेंडेशन आएगी। अगर जैसे आपका इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स से रिलेटेड, जैसे आप देखिए इनकम खाली लिखने पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन, अदर सोर्सेज, सर्टिफिकेट अप्लाई, ये जितने भी कीवर्ड्स है तो ये जो है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग इसको सर्च करते हैं। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स बन सकते हैं। और कीवर्ड्स के साथ साथ अब अगर आप इसको एक एक को सर्च करते जाएंगे तो उसके बाद सजेशन भी आपको गूगल देता है। किस तरीके से सजेशन देगा? अगर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स तो यहाँ पे ऑप्शंस तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे पोस्ट करके देगा। व्हाट पीपल ऑल्सो आस्क, व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्स इनकम, हाउ मच सैलरी इज एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स, विच टैक्स इज इनकम टैक्स, इज आईटीआर डेट एक्सटेंडेड फॉर 2022। तो ये तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हैं और अलग से मार्केटिंग कैंपेन अपनी रन कर सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन नहीं बोलेंगे इसको, आप एजुकेशनल कैंपेन बोल सकते हैं, जिसमें कि आप एजुकेट कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। दीपिका मैम का क्वेश्चन है, इज सर एसईओ इज अ टर्म? या ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही वो चीज होती है जिसके थ्रू ये जो गूगल है वो आपको लिस्ट करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके वीडियोस की भी होती है, आपके ब्लॉग्स की भी होती है, आपके वेबसाइट्स की भी होती है, जिसके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स अपने कंटेंट्स में लेकर आ सकते हैं। जैसे अगर आप इनकम टैक्स, अगर आपने ये टॉपिक चूज करी, हाउ मच सैलरी इज एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स, तो आपके यूट्यूब के टाइटल में भी ये चीज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज होनी चाहिए। और अब जब आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में भी ये पूरी लाइन आपको 2-3 बार बोलनी है कि आप कैसे इनकम टैक्स में आप जो सैलरी है उसका कंप्यूटेशन होगा, जो भी आपकी कीवर्ड्स है तो उनको आपको अपने कंटेंट में भी लेके आना है। तो ये एक तरीका हो सकता है। सर जय सिंह पार्टिसिपेंट है जो हैंड रेज कर रहे हैं, शायद उनकी कोई क्वेरी है क्या? ओके, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम आईसीआई फॉर अपलोडिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया? ओके सर, ये ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिससे कि आप एजुकेशनल कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते। आप या तो आप अपनी एक ब्रांड नेम बना सकते हैं जिसमें कि आप अपना नाम भी यूज नहीं करें, या अगर आपको ज्यादा रिस्क लग रहा है तो आप एक ब्रांड नेम से काम करिए। जैसे कि ग्रो के कई वीडियोस अपलोड होते हैं जिसमें कि वो जो डिलीवर कर रही है वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो ग्रो के नाम से डिलीवर कर रही है, तो एक ब्रांड नेम पे काम चल रहा है। जैसे शिफाली मैम का भी मैंने बताया कंसल्टीज नाम से उन्होंने चालू किया था, तो इस तरीके से एक ब्रांड नेम से वो चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई ब्रांड नेम से आप प्रमोट कर रहे हैं अपने वीडियोस को, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई भी एथिक्स यहाँ पे वॉयलेट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सॉलिसिट कर ही नहीं रहे हैं क्लाइंट को, आप यहाँ पे जस्ट एजुकेशनल वीडियो कंटेंट्स एजुकेटिंग का काम कर रहे हैं। सर आई हैव अ क्वेरी, in starting you have so many views and like, and after some days it not increase, why? Because we have to consistent। हो ये रहा है कि YouTube अब अपना एक टीवी बनाना चाहता है, तो अब YouTube एक टीवी चैनल है, तो अब टीवी चैनल में क्या होता है कि फिक्स है कि आज रात 8 बजे ये सीरियल आ रहे होंगे, तो ऑडियंस को पता होता है कि हाँ हमें इनको देखना है, तो आज रात के 8 बजे इस चैनल पे जाना है। तो वो चीज हमें अपने YouTube पे भी लाना पड़ेगा, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर भी लाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारा जो टारगेट, ये हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे टारगेट ऑडियंस रहेगी उनको पता होगा कि डेली रात के 8 बजे या 9 बजे इनका वीडियो आता है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक फिक्स टाइम पे पूरा ऑडियंस बेस आपके पास आएगा और वो उसको देखेगा। तो इस तरीके से आपका एक फिक्स शेड्यूल जो है, डिसिप्लिन जो है, वो जितना ज्यादा डिसिप्लिन आएगा उतने ज्यादा आपके फॉलोवर्स उस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो जो मेन फोकस है यूट्यूब का, जो थिंकिंग है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि यूट्यूब की थिंकिंग ये है कि वो एज अ टीवी चैनल लाना चाहते हैं, ताकि ये टाइम फिक्स रहे कि इतने टाइम पे ये वीडियो इनका आता है, डेली या वीकली या मंथली, कोई भी एक टाइम आप फिक्स करिए, और उस टाइम पे आप पर्टिकुलरली डिसिप्लिन के साथ अगर अपलोड करेंगे तो ये डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केट क्रिएट की जा सकती है। So one question is,
how to create brand name without keywords. If you search name, you can see, means you give one example for that CA. Because like what I have shown, like whenever we are searching, like Google is telling some keywords which is important for this keyword. So you can use all these keywords in your videos or content. Each and every video. Yeah, each and every video. Yeah. Okay. Sir. Okay. I think I have answered all the queries available in this platform. If anyone want to connect, they can connect me personally also. I have mentioned all the details here, and you can contact me for anything in which I can help you.